காரியங்களுக்காக जो परमेश्वर हमारा जीवनों में दिया है, किया है, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, स्तुति करेंगे, तारीफ करेंगे। परमेश्वर एक अच्छा मौका दिया इस मीटिंग में भाग लेने के लिए। आज परमेश्वर हम सबको आशीष करना चाहते हैं, इसलिए सभी लोग आंख बंद करके हाथ ऊपर उठा के परमेश्वर को स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We praise you, Lord. We worship you, Lord. We thank you, Lord. We thank you. We thank you, Lord, for this wonderful privilege you have given us, oh Father. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। इस नया महीना में प्रभु जी आपने लेके आया। प्रभु जी इसके लिए धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हम सबको प्रभु जी अच्छा तंदुरुस्ती दिया है, प्रभु जी अच्छा बल के साथ, प्रभु जी विश्वास के साथ तेरे सम्मुख में आने के लिए एक अच्छा मौका दिया। प्रभु जी इसके लिए धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वी प्रेज यू, वी प्रेज यू, वी प्रेज यू, वी प्रेज यू लॉर्ड। Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you, Lord, for your presence, oh Father, Lord. Thank you, Lord, for your word, oh Father, Lord. Thank you, Lord, for the speaker today, Lord. You have prepared for us, oh Father, Lord. Hallelujah. Hallelujah. We thank you. We thank you. We thank you. We thank you, Lord. We thank you for all the participants, oh Father, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord, from different places, oh Father, Lord. In spite of all their hurdles, oh Father, Lord, they have joined in this meeting, oh Father, Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord, for enabling them, oh Father, Lord. Lord, to join in this wonderful fellowship through Zoom, oh Father, Lord. Hallelujah, hallelujah. We thank you, we thank you, we thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. सादरे आदर महिमा आपको देते हुए इस छोटी सी आराधना यीशु मसीह का नाम से चढ़ाते हैं, सुनो और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन। Oh, I request Anantarajan to lead program. Once again, we welcome you all, the brothers and sisters, in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, for this revival program. और एक बार हम सब आपको स्वागत करते हैं इस रिवाइवल मीटिंग में आप लोग जुड़े हैं। Now we are going to listen God's word. இப்பொழுது நாம் கர்த்தருடைய செய்திக்குள்ளாக நாம் கடந்து செல்ல இருக்கிறோம். So we are glad to have dear Anna Needas in our midst. So he's the General Secretary of our Blessing Mission. So हमारे बीच में अनन है, नीदास हमारे बीच में है और हमारे बीयूएम के जनरल सेक्रेटरी में प्रभु की सेवकाई करते हैं। अनन we welcome you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. So अभी अनन प्रभु के वचन को शेयर करेंगे। अनन will share the word of God. So at the same time I welcome dear brother Alan B in the name of Lord and Savior Jesus Christ. Brother Alan B अनुवाद प्रभु के वचन को हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो आलम को भी हम मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। तो अभी वो जो नीदास आनंद। Thank you. Greetings to one and all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से आप सबों को जय मसीह की। I am privileged to minister to the leaders and well-wishers of this mission through the word of God through this Zoom. और इस जूम के माध्यम से मैं इस मिशन के अगुओं और मिशनरियों और जितने भी शुभ चिंतक हैं उन सब के मध्य में सेवा करना मेरे लिए प्रभु के तरफ से मिला सौभाग्य है। I thank God and thank the leaders of the mission for having provided me this opportunity to be with you this night. और मैं परमेश्वर का और विशेष करके मिशन के अगुओं का मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया कि मैं आपके बीच में वचन की सेवकाई करूं।
not as a general secretary, but as one among you, along with you, I want to learn the word of God, what God is going to deal with us tonight. और आज की रात जो वचन प्रभु हमसे बातें करने जा रहा है, मैं एक जनरल सेक्रेटरी होने के नाते नहीं, लेकिन आप में से एक के समान रह करके उन वचनों से हम सीखेंगे। By His grace, we have completed 50 years in this ministry. और परमेश्वर के अनुग्रह से हमने 50 वर्ष को इस सेवकाई में पूरा कर लिया है। And may God help us to move on in the same vision and mission in the years to come. और आने वाले वर्षों में भी इसी दर्शन और इसी मिशन के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमारी अनुग्रह करें, सहायता करें। Let us plead God to help us to have clarity in our vision and integrity in the mission. और परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपने दर्शन में एक स्पष्टता और अपने मिशन या कार्य में एक सत्य निष्ठा को परमेश्वर से हम सहायता के रूप में मांगे। We have our vision and mission for a blessing youth mission. और आशीष युवा मिशन के लिए हमारा अपना एक दर्शन और मिशन वक्तव्य है। But we want to have that vision to be more clear. और लेकिन हम चाहते हैं कि हम उस दर्शन में और भी स्पष्ट रहें। Because the generations are moving on. Okay, first generation to second generation to third generation. Now it's moving on. The mission is on the process. और मिशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी, और इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे बढ़ते जा रही है। So we should have clarity in our vision, and we have to be integrity in the mission what God has given to us. और हमें अपने दर्शन में स्पष्टता की आवश्यकता है, और जो कार्य या मिशन जो परमेश्वर ने हमारे हाथों में दिया है उसमें हमको सत्य निष्ठा के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। So a topic for this evening meditation is back to basics. और आज के शाम में जो हम जिस विषय में हम चर्चा करेंगे उसका जो शीर्षक है बुनियादी बातों में वापसी करना। When this assignment came to me, to be frank, I am telling, I just want to avoid this. और जब मुझे इस प्रचार करने के लिए इस बात को मैं इस विषय को मेरे सामने रखा गया तो मैं इससे दूर भाग रहा था। Day before yesterday only, I'd been back from Odisha, South Odisha. और मैं परसों ही साउथ ओडिशा से वापस आया था। So maybe I may need some more time to go on to prepare to share the word of God in a revival meeting like this. और मैं चाहता था कि और भी समय मुझे मिले ताकि मैं इस तरह के रिवाइवल आत्मिक जागृति सभा में इस विषय में मैं आपके सामने वचन को रख सकूं। So purely by the grace of God, I am standing before you, and what God is insisting, just I'll tell the same, nothing more than that. और मैं परमेश्वर के अनुग्रह से ही आज आपके सामने मैं खड़ा हूं, और जो कुछ परमेश्वर ने मुझे आपको बताने के लिए दिया है उसी को मैं बताऊंगा, उससे कुछ भी अधिक नहीं बताऊंगा। The key verse for today's meditation is these two verses are known by heart for all of us. Psalms 85th, 4th and 6th verse. और ये जो वचन है आज का जो मुख्य वचन है वो हम सबको बहुत कंठस्थ रूप से मालूम है। ये पाया जाता है भजन संहिता उसका 85 का 4 और 6वां पद, चौथा और 6वां पद। Fourth verse says this, restore us, O God of our salvation. और चौथा पद इस प्रकार से बोलती है, हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर हमको पुनः स्थापित कर। And the 6th verse says, will you not revive us again that your people may rejoice in you? और 6वां पद इस प्रकार से बोलती है, क्या तू हमको फिर ना जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे। This was told to the people, those who have been already saved or those who have been already inside the fold. और इन वचनों को उन लोगों के लिए बताया गया जो पहले से ही उद्धार पा चुके थे या पहले से ही उस झुंड में पाए जाते थे।
Then why Psalmist shouts that Lord, we need another revival? और परंतु ये भजनकार क्यों फिर से चिल्लाता है कि हमें एक और जागृति की आवश्यकता है? Some way or other, at some point of time, we may start deviating from our main track. और किसी न किसी समय में ऐसा आ जाता है जब हम अपने उस मुख्य द्वार से, मुख्य मार्ग से हम भटक जाते हैं। And that is the reason why we need another revival. इसी कारण से हमें एक और जागृति की आवश्यकता है। No other organization had the privilege of teaching the practical lessons from the book of Nehemiah than BYM. और आशीष युवा मिशन को छोड़ करके किसी और संस्था में नेहम्या को एक व्यक्तिगत, एक व्यवहारिक तौर पर सिखाने का सौभाग्य किसी और संस्था को नहीं मिली। We would have taught several messages from the book of Nehemiah and we would have heard hundreds of messages from the same book of Nehemiah. और हमने बहुत सारे प्रचारों को किया होगा और सीखा होगा और सिखाया भी होगा और बहुत सारे बातों को हमने सुना भी होगा। But still, when I was meditating the book of Nehemiah, one more lesson is very, very important what we need to learn from it. और लेकिन इतनी सारी बातों को सुनने के बाद भी जब मैं नेहम्या के पुस्तक को फिर से पढ़ रहा था तो मुझे एक ऐसी बात की आवश्यकता मालूम पड़ी जो हमको जानने की आवश्यकता है। In the 8th chapter, we all knew this 8th chapter, what is happening there. और हम नेहम्या 8वें अध्याय को हम अच्छी तरह से हम जानते हैं वहां क्या घटना घट रही है, हमको मालूम है। The scribe Ezra and other Levites made the people to understand the law. Once they understood the law, they wept and started crying after hearing the word of God or law of the Lord. और एजरा शास्त्री और अन्य जो शास्त्री लोग थे, जब उन्होंने व्यवस्था को सुनकर पढ़ करके लोगों को सुनाया, तो जब लोगों ने उसे सुना तो वो पश्चाताप, रो रो करके वो पश्चाताप करने लगे। If you read 8:13, now on the second day the heads of the fathers' house of all the people with the priests and Levites were gathered to Ezra in order to understand the words of the law. और 8:13 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, दूसरे दिन भी समस्त प्रजा के पितरों के घराने के मुख्य मुख्य पुरुष और याजक और लेव्य लोग एजरा शास्त्री के पास व्यवस्था के वचन ध्यान से सुनने के लिए इकट्ठे हुए। And they found written in the law which the Lord had commanded Moses that the children of Israel should dwell in booths during the feast of the 7th month. और 14वें पद में ऐसा लिखा है, उन्हें व्यवस्था में यह लिखा हुआ मिला कि यहोवा ने मूसा के द्वारा यह आज्ञा दी थी कि इजराइली 7वें महीने के पर्व के समय झोपड़ियों में रहा करें। So while they were reading the scripture, they found out they have forgotten the festival of booths. और जब इस बातों को वो सुन रहे थे तो उन्होंने उस झोपड़ियों के पर्व के विषय में वो भूल चुके थे। After reading the scripture, they went out and they prepared the booths and they celebrated the festival of tabernacle or the festival of booths. और जब इस वचनों को पढ़ा गया तब वो लोग इस बात को समझ गए कि हमने भूल की है और फिर वो बाहर जाके तंबू बनाते हैं और उस पर्व को मनाया गया। This was mentioned there in the Leviticus 23rd chapter 4th verse and 23rd chapter 34th verse. और हम इस बात को लेव्य व्यवस्था 23 के 4 में और 23 के 34 में हम पाते हैं। And Numbers 29 chapter 12th verse and Deuteronomy 16:16. और यही बातों को हम गिनती की पुस्तक 29वें अध्याय 12 पद में और व्यवस्था विवरण 16 के 16 में भी हम देखते हैं। So this was already written there in the book of the law. और ये बातें व्यवस्था की पुस्तक में पहले से ही लिखी हुई थी। But they have forgotten these basics. लेकिन इन मूल बातों को उन्होंने भूल चुके थे। But when they read the law, and the law reminded them to do what they had forgotten already.
और जब उन्होंने उस व्यवस्था को पढ़ा, उस व्यवस्था के द्वारा उन्होंने ये जाना कि हमें जो करना था उसको हम करना भूल गए हैं और ने- वापस उससे हमें करना है करके उस बात को उन्होंने समझा। Nehemiah 8 chapter 17th verse says like that, the whole congregation made booths and sat under the booths, for since the day of Joshua until that day, the children of Israel had not done so. और 8 नेहमिया 8:17 में हम देखते हैं, वरन सब मंडली के लोग जितने बंधुआई से छूट कर लौट आए थे, झोपड़ियां बनाकर उनमें रहे। नून के पुत्र यहोशू के दिनों से लेकर उस दिन तक इस्राएलियों ने ऐसा नहीं किया था। And there was a great gladness among them. उस समय बहुत बड़ा आनंद हुआ। Back to the basics. और उस मूल सिद्धांतों में वापस आना, उन बुनियादी बातों में वापसी करना। Law of the Lord or the word of God help them to come back to basics. और परमेश्वर का वचन या परमेश्वर की व्यवस्था ने उन्हें परमेश्वर की बातों में वापस आने के लिए सहायता की। My dear beloved brothers and sisters, revival is not a magic at all. और मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये जागृति कोई जादू मंत्र नहीं है। It is not a magic if we obey the word of God or if we read the word of God and if we obey what it says, then automatically we will be revived. और अगर हम जो बातें व्यवस्था में लिखी हुई हैं या परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है, अगर हम उन बातों को मानते हैं, तो हम उस बातों को पूरा होते और जागृति को पूरा होते हुए हम देखते हैं और हम उन बातों को हम पूरा होते हुए अपने जीवन में देख सकते हैं। So this night I am not here to criticize anyone, but to just see ourselves through the scriptures and to follow the word of God and on to move on in the same line where our founding leaders went. और आज रात के समय में मैं आपकी आलोचना करने के लिए यहाँ नहीं खड़ा हूँ, लेकिन मैं उन बातों को जो हमारे जो मुख्य जो लोग जो संस्थापक लोग थे, जिन्होंने उन बातों को उन्होंने जो सिद्धांतों को उन्होंने मिशन के लिए बनाया था, उन बातों में हम दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने के लिए आज रात्रि के समय हम देखने जा रहे हैं। So let us learn few lessons from the Acts of Apostles 3rd chapter. और आज हम प्रेरितों के काम 3रे अध्याय में से कुछ बातों को हम सीखने जा रहे हैं। These are the areas where we need to come back to basics. और ये कुछ स्थान है जहां पे हमें मूल सिद्धांतों में वापस होना जरूरी है। May God help us to understand His heart's burden. और परमेश्वर के दिल में जो एक बोझ है, उस बोझ को समझने के लिए हमारी सहायता करें। I request all of you to turn back to the book of Acts, that is Acts of Apostles 3rd chapter. और मैं आप सबों से अनुरोध करूंगा कि आप अपने बाइबल को प्रेरितों के काम 3रे अध्याय के लिए में खोल लें। This is another chapter from where we have been heard so many messages. और ये एक और अध्याय है जहां से हमने बहुत सारे संदेशों को सुना है। When I was meditating this chapter long back, God was dealing with me in a different way. और जब मैं इस अध्याय को बहुत समय पूर्व में अध्ययन कर रहा था, तो परमेश्वर ने मुझे एक अलग तरीके से बर्ताव किया। From this chapter, we all know that a big miracle or a great miracle was happened there in the Jerusalem. और हम इस अध्याय में हम देखते हैं कि एक बहुत बड़े एक चमत्कार यरूशलेम में घटी। So we have been familiarized with this miracle, what happened, who are all the persons around this. So we knew all these things, but tonight we will be dealing one by one what God wants us to insist to come back to the basics in our lives. और हम इस घटना को अच्छी तरह जानते हैं। इसमें कौन कौन लोग
सम्मिलित हैं, पाए जाते हैं, क्या क्या हुई है, सारी बातों को हम अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो परमेश्वर आज की रात में हमसे बातें करना चाहता है। Number one, lesson number one. और पहला जो पाठ हम सीखते हैं, We'll read from verse 2. और हम दूसरे पद से हम पढ़ेंगे। A lame man from his mother's womb was carried and laid at the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask alms from those who entered the temple. और दूसरा पद इस प्रकार से बोलता है, और लोग एक जन के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे, कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। Lesson number 1 is, और पहला पाठ ये है, souls are more important than stones. और पहला जो पाठ हम ये सीखते हैं कि आत्माएं पत्थरों से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। Polished stone versus perishing soul. और जो चिकना किया गया पत्थर बनाम जो नाश होती आत्माएं हैं, To which we are giving more importance in our lives. हमारे जीवन में किस बात को हम ज्यादा महत्व दे रहे हैं? Revival among young men and evangelism through young men is our slogan of the mission. और हमारे मिशन का जो कथन है, जवानों के द्वारा जागृति और जवानों के बीच में जागृति और जवानों द्वारा सुसमाचार प्रचार। Reaching the unreached is the evangelism. और अपहुंचों तक पहुंचना ही सुसमाचार प्रचार है। So souls are more important than stones. इसीलिए आत्माएं पत्थरों से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। Let me want to tell about this Jerusalem temple. और मैं इस यरूशलेम के मंदिर के विषय में आपको बताना चाहता हूँ। This is the second temple which was built by Zerubbabel. और ये दूसरा मंदिर है जो यरूबाबेल के द्वारा बनाई गई थी। But later on it was destroyed. और आने वाले समय में वो पूरी तरह नाश कर दिया गया। And the same temple was renovated or expanded or beautified by Herod the great king for nearly 46 years. और उसी मंदिर को फिर से हेरोद राजा ने 46 वर्ष तक उसको पूरा पुनर्निर्माण करके उसकी देखभाल की। John 2:20 says, it has taken 46 years to build this temple or to renovate this temple or to expand this temple. और यूहन्ना 2:20 में इस प्रकार से बोलता है कि इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं। This temple has played a vital role or a prominent role in the ministry of Jesus Christ and in the church history. और हम देखते हैं यीशु मसीह के समय में और यीशु मसीह की सेवकाई में और कलीसिया के इतिहास में ये मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण जगह रखती हैं। Grandeur look and full of white marble stones, and in the eastern side the wall was covered with the golden plates. और हम देखते हैं बहुत भव्य मंदिर था और व्हाइट मार्बल्स थे और बहुत सारे, और जो पूर्वी ओर का जो दरवाजा था वो सोने से मड़ा हुआ था। Imagine how the temple would have looked like in those days. और कल्पना कीजिए उन दिनों में वो मंदिर कितना भव्य दिखता होगा। No doubt it would have been one of the wonders of the world in those days. और इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि उन दिनों में वो एक अद्भुत बात रही होगी। It was constructed in 26 acres of land, and temple was inside a corner, and which has 4 gates to enter into it. और वो जो मंदिर था वो 26 एकड़ जमीन में वो फैला हुआ था और वो मंदिर एक किनारे में था, लेकिन उसके प्रवेश 4 द्वार थे। What a design! कितना एक अद्भुत एक डिजाइन था। This is not my word. This is what the disciples of Jesus Christ told on that day. और ये मेरी बात नहीं है, लेकिन ये शिष्य थे जिन्होंने इस बात को वहां बताया है। Mark 13:1 if you read, अगर मरकुस 13 का 1 अगर आप पढ़ेंगे,
Then as he went out of the temple, one of his disciples said to him, Teacher, see what manner the stones and what building are here. और 13 के 1 में बोलता है, जब वह मंदिर से निकल रहा था तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे Then गुरु, Jesus- देख कैसे विशाल पत्थर और कैसे भव्य भवन हैं। Then Jesus answered and said to him, Do you see these great buildings? Not one stone shall be left upon another that shall not be thrown down. और दूसरे पद में इस प्रकार से बोलता है, यीशु ने उससे कहा, क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो? यहाँ पत्थर पर पत्थर भी बचा ना रहेगा जो ढाया ना जाएगा। Mostly they were interested only in stones or only in buildings or only in structures. They have not bothered about souls. और जो चेले थे वो बहुत ज्यादा उस भवन की ओर, उस ढांचे की ओर बहुत ज्यादा आकर्षित होके थे, लेकिन उनको आत्माओं की कोई चिंता नहीं थी। Apostle Paul reminds this to his young Timothy in 1 Timothy 1st chapter 15th verse. Jesus Christ came to world to save the sinners. और इसी बात को पौलुस पहला तीमुथियुस उसका 1 के 15 में बोलता है, वो बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया ताकि वो पापियों को वो क्या कर सके, उनका उद्धार कर सके। Matthew 1st chapter 21st verse says, He is Savior, He is not a builder. और मत्ती 1 के 21 में हम देखते हैं, वो बोलता है वो एक उद्धार करता है, वो एक निर्माण करता नहीं है। Here in this temple on the eastern side of the gate, that lame man was sitting. और इसी भवन के उस पूर्वी द्वार पर ये भिखारी बैठा हुआ था। Acts 4:22 says, the lame man was over 40 years and probably he would have spent his prime age in getting alms from the people sitting at the entrance of the eastern gate. और प्रेरितों के काम 4 के 22 में हम देखते हैं, वहां पे लिखा है कि वो करीब 40 वर्ष का था, यानी उसके बहुत अच्छे समय को उसने उस यरूशलेम मंदिर के पूर्वी छोर में बैठ करके भीख मांगने में बिता दी। Though King Herod was very close to Roman authorities, he wanted to appease Jews so that he can retain his throne for some more time. और वो हेरोद राजा वो क्या है, वो यहूदियों को खुश करने के चक्कर में वो क्या है, रोमियो के सरकार को वो किसी तरह से भी खुश करके अपने गद्दी को वो बचाना चाहता था। Herod spent millions of rupees in according to our days. He has spent millions of rupees not to appease God but to appease the Jews. That's all. और आज के दिन में अगर देखा जाए तो हम बोल सकते हैं कि हेरोद राजा ने परमेश्वर को खुश करने के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन यहूदियों को खुश करने के लिए उसने लाखों करोड़ों रुपयों को उसने फूंक डाला। Imagine 46 years he has expanded, or for a renovation work he took 46 years, but this lame man was almost 40 years above, so most probably he would have spent his prime age in sitting at the eastern gate and getting alms, but not Herod and not any other people have bothered about this lame man or this soul. और हम देखते हैं कि हेरोद ने जो भवन का पुनर्निर्माण किया उसमें 46 वर्ष बीत गए, और बाइबल के अनुसार हम देखते हैं ये जो भिखारी है, ये जो लंगड़ा व्यक्ति है, ये 40 वर्ष उसका था जब वो चंगाई प्राप्त किया, यानी उसके बहुत अच्छे समय को उसने उस भवन के द्वार में बैठ करके भीख मांगने में बिता दी। किसी को भी उसके प्राण की या उसके आत्मा की कोई भी सुधि नहीं आई। Their interest was only in the structure or in the building or in the temple and not in the soul. और उनकी जो रुचि थी सिर्फ भवन कितना अच्छा है, कितना अच्छा ढांचा बना हुआ है और कितना पैसा इसमें लगाया गया, उसी पर वो ज्यादा चिंता करते, ज्यादा अपने आकर्षण को लगाते थे, ना कि उसकी आत्मा की ओर। Sometimes we are also following the same way what Herod did. और उसी तरह से हम भी उसी नमूने के में चलते चले जाते हैं जैसे हेरोद राजा ने किया था।
when we Blessing Youth Mission was founded in the year 1971, we don't have permanent office or admin building at all. और जब 1971 में आशीष युवा मिशन की स्थापना हुई तो उस समय हमारे पास कोई भी मुख्यालय जैसी बातें नहीं थी। No office setup, nothing. और कोई भी ऑफिस सेटअप नहीं था। But later on when need arises, God blessed us. और लेकिन जब आने वाले समय में उसकी आवश्यकता हुई तो परमेश्वर ने उसकी भी सुधि ली। Again, now this is my personal view. We are slowly deviating from our early vision. और ये मेरा मानना है कि हम पहले के जो दर्शन था उससे हम थोड़ा भटक सा गए हैं। Moving away from the vision of revival and evangelism. और जो जागृति और सुसमाचार प्रचार कार्य की जो सेवकाई है उससे हम थोड़ा भटक गए हैं। This is not our mistake, it is a strategy of the devil to trap us and to make us to deviate from our vision. और ये हमारी गलती नहीं है, लेकिन ये शैतान का एक चाल है जो हमको इस तरह की बातों में वो उलझा करके हमें उस मार्ग से अलग कर देता है। Where is our vision? हमारा दर्शन कहाँ है? Where we are leading to? हम कहाँ, किस ओर हम जा रहे हैं? Stones or souls? क्या वो पत्थरों के पीछे या आत्माओं के पीछे? If we lose our vision one fine morning, we may be amassed with buildings, but not with the precious souls. लेकिन हो सकता है एक दिन ऐसा आ जाएगा जब हम बड़े-बड़े अच्छे भवनों को हम अपने साथ रखने वाले हो जाएंगे, लेकिन कोई भी जो बहुमूल्य आत्माएं हैं वो हमारे साथ नहीं होंगे। Building should not become stumbling block to the expansion of the kingdom of God. और परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए भवन हमारे लिए एक रुकावट का कारण नहीं होना चाहिए। I am sorry to say this, if we concentrate more on the buildings or if we concentrate more on the structures, slowly we will lose the care and concern for the souls. और मैं बहुत दुख के साथ इस बात को कहता हूं कि अगर हम इस तरह से अगर सिर्फ हम भवनों में और बिल्डिंग्स में हम अपने ध्यान को हम केंद्रित करेंगे तो हम उन आत्माओं को हम धीरे-धीरे हम खो देंगे। This Babel mentality has to go away from us. और ये जो भटकने वाली आत्मा है वो हमसे दूर होना चाहिए। Okay, by saying this, don't think that buildings are not essential. इस तरह से अगर मैं कह रहा हूं तो इसका ये मतलब नहीं है कि भवनों की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। We need buildings or we need training centers or we need worship sheds, etc. और हमें बिल्डिंग्स की आवश्यकता है, ट्रेनिंग सेंटर्स की आवश्यकता है और वर्शिप शेड्स की भी आवश्यकता है। But where is our concentration? What is our priority? लेकिन हमारा जो केंद्र कहाँ है, हमारी जो प्राथमिकता क्या है? Luke 15:10 says there is joy in the presence of angels of God over one sinner who repents. और लूका 15:10 में हम देखते हैं वहां पे इस प्रकार से लिखा है कि मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। Building the kingdom of God is more important than building Blessing Youth Mission. और आशीष युवा मिशन को बनाने से ज्यादा मुख्य है हम परमेश्वर के राज्य को बनाएं। I believe and hope that if we concentrate more on building a kingdom of God, God will build our Blessing Youth Mission. अगर हम परमेश्वर के राज्य को बनाने के लिए ज्यादा हम अपने ध्यान को अगर हम केंद्रित करेंगे तो परमेश्वर आशीष युवा मिशन को बनाएगा। Let me give few statistics what the present world has given related to the buildings. और मैं कुछ तथ्यों को आपके सामने रखना चाहूंगा जो वर्तमान के संसार ने हमारे लिए रखा है। The world famous Wall Street Journal carried an article written by Naftali Ben David on
January 2nd, 2015. और जनवरी 2015 में एक वॉल स्ट्रीट जर्नल करके एक बहुत ही प्रसिद्ध एक पत्रिका है जिसमें उन्होंने एक लेख को प्रकाशित किया। The title is Europe's Empty Churches Go on Sale. और उसका जो शीर्षक था, यूरोप में जितने भी कलीसियाएं हैं जो खाली पाई जा रही हैं उनको बिक्री में दिया जा रहा है। Hundreds of churches have closed or threatened by plunging membership, posing a question what to do with the unused buildings. और हम देखते हैं कि इस प्रकार से लिखा गया था कि सैकड़ों कलीसियाएं ऐसी हैं जहां पे या तो उनके जो जनसंख्या है वो घट चुकी है या फिर वो बिल्कुल बंद होने के कगार में पाई जाती हैं। Famous church in Netherlands, St. Joseph Church, was one among the church which was closed out of 100 churches. और उन सैकड़ों कलीसियाओं में सेंट जोसेफ करके एक नीदरलैंड करके एक देश में वहां पे वो बंद कर दी गई। The Church of England closes around 20 churches in a year. और चर्च ऑफ इंग्लैंड करके जो कलीसिया है वो 20 कलीसियाओं को हर वर्ष वो बंद कर देती है। Roughly 200 and odd churches have been underused in Danish. और डेनमार्क करके एक जगह है वहां पे 200 से ज्यादा कलीसियाएं उनका सही इस्तेमाल नहीं हो पाया है। In Germany, in the past 1 decade, 515 Roman Catholic churches have been closed. और पिछले एक दशक में Germany, Roman Catholic churches. 500 से ऊपर कलीसियाओं को, रोमन कैथोलिक कलीसियाओं को बंद कर दिया गया। In Holland, 700 and odd Protestant churches are expected to close within 4 years. और अगले 4 वर्षों में 700 से ज्यादा कलीसियाएं हॉलैंड करके एक शहर है वहां पे बंद होने के कगार पे है। A Lutheran church in Edinburgh, Scotland was converted as a pub. और एडिनबरा जो स्कॉटलैंड के एक शहर है वहां पे एक कलीसिया को एक बार में तब्दील कर दिया गया। Another famous churches, a few other famous churches in Holland have made as a supermarket, bookstore and gymnasium. और बहुत सारे प्रसिद्ध कलीसियाएं जो हॉलैंड में पाई जाती हैं उनको या तो पुस्तकालयों में या फिर उसको बहुत बड़े-बड़े मॉल्स में बदल दिया गया है। A 18th century famous church in Netherlands became a shopping complex. और प्रसिद्ध 18वीं सदी के एक कलीसिया जो नीदरलैंड में पाई जाती है उसको एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बदल दिया गया। St. Paul's Church in Bristol, England became a training center for circus training. और ब्रिस्टल इंग्लैंड में एक प्रसिद्ध कलीसिया को जो सर्कस है उसके ट्रेनिंग के लिए बदल दिया गया। Why? What is happening? What has happened to all these churches? क्या हुआ इन सारी कलीसियाओं को? These are the countries once they have sent missionaries and Christian literatures to the unreached world. और ये ऐसे देश हैं जिन्होंने एक समय में बहुत सारे मिशनरियों को भेजा, बहुत सारे साहित्यों को भेजा, उन लोगों तक पहुंचाया जो कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते थे। They have slowly started deviating from their vision. और उन्होंने धीरे-धीरे करके अपने दर्शन से उन्होंने किनारा कर लिया। This should not happen to us. और ये बातें हमारे संस्था के साथ नहीं होना चाहिए। If you want that article, I have that PDF copy. I will send it to each and everyone. We have photographs and statistics from this Wall Street Journal. और इस वॉल स्ट्रीट जर्नल से जो एक पत्रिका है उसका मेरे पास फोटो भी है और उसमें बहुत सारे सांख्यिकी भी लिखी हुई है। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको हर एक को एक कॉपी भेज सकता हूँ। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों,
In our annual review meetings, whatever we may call it, it is a general body or a board or a EC or ACM, whatever it may be, our priority should be how many souls we won for Christ and not how many churches we have constructed. और हमारा जो भी वार्षिक जो भी बैठकें होती हो, चाहे वो AGPM हो, चाहे वो बोर्ड मीटिंग हो, चाहे EC ACM कुछ भी मीटिंग क्यों ना हो, उसमें हमारा मुख्य जो केंद्र होना चाहिए, हमने कितनी आत्माओं को जीता है, ना कि हमने कितनी कलीसियाओं को बनाया है। Even we need to teach our partners. Partners are ready to give money, are ready to donate money to build churches, but we need to tell them churches, okay, it is essential, it is necessary, but it is a secondary, but souls are more important. और हम हमारे जो सहयोगी हैं, हमें जो सहयोग करते हैं, उनको वो कलीसिया बनाने के लिए हमें दान करते हैं। कलीसियाओं की आवश्यकता है, लेकिन उनको हमको ये भी बताना है कि सबसे पहले हम परमेश्वर के राज्य के लिए आत्माओं को जीतें। Reaching the unreached is the most essential. Souls are more important than souls. Souls are more important than stones. और हमें ये जानने की आवश्यकता है कि आप पहुंचों तक हमको पहुंचना है। इसका ये मतलब है कि आत्माओं से ज्यादा, पत्थरों से ज्यादा आत्माओं की आवश्यकता हमें है, जरूरत हमें है। Lesson number 2. और दूसरा जो पाठ है, 3rd chapter, Acts of Apostles, 3rd chapter, 6th verse. और प्रेरितों के काम 3रा अध्याय 6वां पद। Silver and gold I don't have, but what I have do I give to you, Jesus Christ of Nazareth. और 3:6 में हम देखते हैं, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। Lesson number 2. और दूसरा जो बात है, दूसरी जो पाठ है, Truth is more important than tithe. और सत्य दशमांश से ज्यादा महत्वपूर्ण है। Message is more important than money. और जो संदेश है वो पैसों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। Scripture is more important than silver. और जो परमेश्वर का वचन है वो चांदी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। We all knew this famous verses from the Psalms 119 chapter. और हम सब इस प्रसिद्ध वचनों को भजन 119 से हम जानते हैं। 72nd verse. और 72वां पद, The law of your mouth is better to me than thousands of shekels of gold and silver. और तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। 127 in the same Psalm, I love your commandments more than gold, yes, than fine gold. और उसी 119 के 127 में हम देखते हैं, इस कारण मैं तेरी आज्ञाओं को सोने से वरन कुंदन से भी अधिक प्रिय मानता हूँ। Psalms 19:10 says the judgment of the Lord are more to be desired than gold. और भजन संहिता 19:10 में हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं। And this is the same temple where Jesus cleansed the temple with the whip. और ये वही मंदिर है जिसको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कोड़ों के द्वारा उसकी सफाई की। John 2nd chapter, you can read this incident. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2रे अध्याय में आप इस बातों को आप पढ़ सकते हैं। Romans were ruling the Jews over the period. और उस समय रोमी यहूदियों के ऊपर शासन कर रहे थे। And they were oppressing the Jews. और वो यहूदियों को बहुत ज्यादा कुचल रहे थे। And Jews may thought that when Jesus took the whip, they would have thought them, they would have beat him, the Romans. But ultimately, God whipped the Jews. और जब यीशु मसीह कोड़े को उठाए तो उन लोग सोचे कि अब ये जा करके रोमी लोगों को मारने वाला है, लेकिन यीशु मसीह ने यहूदियों को ही उस कोड़े से मारा। Because for them they neglected the truth and they have concentrated on the tithe or the money. और हम देखते हैं कि उन्होंने सत्य को नकार दिया और वो ज्यादा दशमांश की ओर अपने ध्यान को केंद्रित किए हुए थे।
By His sovereign grace, God has enabled our founding leaders to start the Blessing Youth Mission or FIJIMA as a revival movement. और परमेश्वर की दया से जो भी संस्थापक अगुवे थे, उन्होंने आशीष युवा मिशन को फिजमा करके उस तरीके से उन्होंने उसकी शुरुआत की। Ours is not a missionary organization. हमारा एक मिशनरी संस्था नहीं है। Ours is a revival movement. हमारी जो हम एक जागृति के एक आंदोलन या एक आंदोलन है। Our missionary evangelism is the outcome of revival poured upon them in the early days. और जो जागृति सुसमाचार प्रचार को उत्पन्न करने वाली एक कार्य बन गई उन आरंभिक दिनों में। According to D.L. Moody, the great man of God, और परमेश्वर के महान सेवक D.L. मूडी के अनुसार, in our prayers we talk to God, in our Bible study God talked to us, and we had better let God do most of the talking. और उन्होंने इस प्रकार से कहा, हमारी प्रार्थनाओं में हम परमेश्वर से बात करते हैं, हमारे बाइबल अध्ययन में परमेश्वर हमसे बातें करते हैं, और बेहतर यही होगा कि हम परमेश्वर को अधिकतर बातें करने दें। The early leaders or the founding leaders or the pioneer leaders of our mission studied and restudied the word of God many times, and the Lord led them to reach the unreached masses. और हमारे जो आरंभिक अगुवे थे, जो जिन्होंने इस संस्था की स्थापना की, उन्होंने बार बार उस परमेश्वर के वचन को पढ़ा, जिससे कि वो लोग उस अपहुंचों तक पहुंचने में वो लोग कामयाब हुए। Revival begets evangelism. और जो जागृति है वो सुसमाचार को उत्पन्न करती है। This is the way how they frame the slogan revival among young men and evangelism through young men. और इसी कारण से इस कथन की सृष्टि हुई कि जवानों के बीच में जागृति और जवानों के द्वारा सुसमाचार प्रचार। Though this is the slogan of BYM, it is the core of the Great Commission what Lord God has taught us. और यद्यपि ये आशीष युवा मिशन का एक कथन है, लेकिन ये अगर आप देखेंगे तो हमारे जो महान आदेश है प्रभु यीशु मसीह द्वारा दिया गया महान आदेश का एक भाग भी है। If we can read this in Matthew 28 chapter 18 to 20th verse. और इस बात को हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें अध्याय 18 से 20 पद तक हम पढ़ सकते हैं। But I'm very sorry to say that somewhere or at some point of time the present generation have slowly started deviating from its main vision. और मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं हमारा जो वर्तमान की जो पीढ़ी है वो इस दर्शन से थोड़ा भटक गई है। Once again, BYM is a revival movement and it is not a fundraising agency. और मैं फिर से बोलना चाहता हूं कि आशीष युवा मिशन एक जागृति का आंदोलन है, ना कि पैसों को जुटाने वाली एक संस्था है। God has given us the grace of teaching the word of God or preaching the truth, the scripture as truth. और परमेश्वर ने आशीष युवा मिशन को परमेश्वर के वचन को सत्य के रूप में लोगों के सामने प्रकट करने के लिए हमें रखा है। If we teach the truth or the scripture to the body of Christ, then God will take care of all of our needs. अगर हम परमेश्वर के सत्य वचनों को हम परमेश्वर के देह के लिए अगर हम प्रचार करेंगे तो परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करेगा। The mission has faced several ups and downs in the past 5 decades, but God has not let this down. और परमेश्वर के अनुग्रह से मिशन पिछले 5 दशकों में बहुत उतार चढ़ाव को देखा, लेकिन परमेश्वर ने कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ा। Even during this pandemic period for the past 2 years, many organizations have struggled to pay the allowances to their staff. Many churches have been closed, but according to His sovereign grace, God has enabled and provided us. Amen. Amen.
और परमेश्वर ने जो 2 वर्षों से जो महामारी का दौर चला जा रहा है, बहुत सारे मिशन अपने मिशनरियों को उन लोग तनख्वाह देने के लिए भी बहुत ज्यादा उन लोग संघर्ष कर रहे थे। बहुत सारी कलीसियाएं बंद हो गई, लेकिन परमेश्वर के महान अनुग्रह से परमेश्वर ने किसी भी प्रकार की कमी घटी हमारे मिशन को नहीं होने दी। Teaching the word of God to the individuals and teaching the word of God to the body of Christ should be our top priority. और हमारी जो प्राथमिकता होनी चाहिए वो ये है कि हम परमेश्वर का वचन हर एक व्यक्ति को और परमेश्वर के उस दे को हम सुनाने वाले हों। Money for evangelism and other social concern activities should be our secondary work, and our top priority should be teaching the word of God. और हमारी जो प्राथमिकता होनी चाहिए वो ये है कि हम परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाएं, और जो भी पैसों की उगाही है, जो भी मतलब हम पैसा इकट्ठा करते हैं सोशल कंसर्न के लिए और अन्य कार्यों के लिए, वो हमारा दूसरा काम होना चाहिए। When the secondary becomes primary and the primary goes secondary, we are dishonoring God and God is not pleased with us. और अगर हम माध्यमिक को प्राथमिक कर दें और प्राथमिक को माध्यमिक कर दें तो इससे हम परमेश्वर को कतई प्रसन्न नहीं करते हैं। Revival and evangelism are the two sides of a coin. और जो जागृति और सुसमाचार प्रचार सिक्के के 2 पहलू हैं। Then you may ask me, then what about brother we have fivefold ministry? Then you are telling about a different thing. You may think like that. और आप ये बोल सकते हैं, अरे भैया हमारे मिशन में तो 5 प्रकार की सेवकाई, लेकिन आप तो अलग प्रकार की बातें बोल रहे हैं। Youth ministry or SFJ is the extension of a revival. और जो यूथ मिनिस्ट्री या एसएफजे जो है वो एक जो क्या बोलेंगे, एक जागृति का एक विस्तार है। Literature is the tool for revival. और जो साहित्य है वो जागृति का एक जरिया है। Church planting and social concern is the extension of evangelism. और जो कलीसिया रोपण और सामाजिक सेवा है वो सुसमाचार प्रचार का एक विस्तार है। So our yearly outcome should not how much money has been collected or how much fund has been raised, how many people we had taught the word of God and how many of them we have revived them according to the truth. और हमारा जो अंतिम लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि हमने कितना धन को इकट्ठा किया है, लेकिन हमारा जो मुख्य ध्यान होना चाहिए कि हमने कितने लोगों को हमने परमेश्वर के वचन के द्वारा, कितने जवानों को हमने परमेश्वर के वचन के द्वारा जागृत किया है। The founding leaders have not started the mission by keeping a huge balance in the bank account. और हमारे जो संस्थापक अगुवे हैं उन्होंने इस मिशन की शुरुआत एक बहुत ज्यादा पैसे बैंक में थे इसीलिए शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। We all knew that it has started with just 10 rupees and now in the present day we are dealing in crores. और जब मिशन की शुरुआत हुई तो सिर्फ 10 रुपया हमारे पास थी, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से आज हम करोड़ों में हम देख रहे हैं। If we do our part right, and God will take care of all our needs. Amen. Amen. अगर हम परमेश्वर के भाग को अगर हम उत्तमता से करेंगे तो परमेश्वर हमारे भाग की भी पूर्ति करेगा। Teaching sound doctrine and teaching the correct doctrine and teaching the truth is the main work of BYM. और आशीष युवा मिशन का जो मुख्य काम है वो है स्वस्थ सिद्धांत को प्रचार करना और सत्य को प्रचार करना, यही आशीष युवा मिशन का मुख्य सिद्धांत है। My dear brothers and sisters, I don't know how many of you knew all these things. Christendom is flooded with so much of novel and wrong doctrines as on date. और मेरे प्रिय मसीह भाई और बहनों, मुझे नहीं मालूम कितने लोग आप लोग जानते हैं कि आज मसीहत में बहुत सारी नई और गलत सिद्धांत इस पूरे मसीहत में फैली हुई है। Some pastors are teaching about hyper grace and almost pulling the people away from the God by teaching them you can commit sin, you no need to worry about the sin what you are committing. God has already taken care of all our sins on the cross, so you can go on, no need to worry. और
कुछ परमेश्वर के दास आपके ऊपर परमेश्वर ने बहुत अनुग्रह किया है, आप जितना भी पाप करना है करते चले जाइए, क्योंकि परमेश्वर ने आपके सारे पापों को उस क्रूस के ऊपर उठा लिया है करके उनको परमेश्वर से दूर करते हुए ले जा रहे हैं। Another one preaching like that, there is no word called revival in the Bible. So whoever preaches a revival, they are fake preachers. और एक ऐसे भी प्रचार करते हैं कि बाइबल में कहीं भी जागृति शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसीलिए ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर वो जागृति के विषय में अगर प्रचार करे तो वो झूठा प्रचारक है। Another preacher is explaining Jesus was living in a bungalow type building, which it consists a dining room, bedroom, bathroom. He was telling all sorts of nonsense. और एक ऐसा भी प्रचारक था जिन्होंने कहा कि यीशु मसीह एक बहुत बड़े बंगले में रहता था, वहां ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम और फलाना ठिकाना, बहुत सारे बकवास की बातें वो बोल रहा था। If you want to see all these videos, I have a copy with me. I'll send it to you. अगर आप इस वीडियो को आप देखना चाहते हैं, मेरे पास वो वीडियो पाए जाते हैं, मैं आपको भेजूंगा। But what is our response for these novel doctrines and wrong doctrines? और ये जो नए नए सिद्धांत और जो गलत सिद्धांत हमारे सामने आ रहे हैं, उनके लिए हमारा प्रत्युत्तर क्या है? BYM is known for teaching the sound doctrine. BYM is known for making people alert for these type of novel doctrines. How we are defending now? और आशीष युवा मिशन इस बात के लिए पहचानी जाती है कि ये जो गलत सिद्धांत हैं और जो नए नए सिद्धांत हैं, उसके विरुद्ध में स्वस्थ सिद्धांत को प्रचार करके हम अब आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इस वक्त हमारा क्या प्रत्युत्तर है? God is using many servants of God to defend these wrong doctrines in various ways. और परमेश्वर बहुत सारे परमेश्वर के दासों को खड़ा कर रहा है ताकि इस गलत सिद्धांतों के विरुद्ध में या उसको गलत साबित करने के लिए उनको खड़ा कर रहा है। Beloved, if we keep quiet, stones will speak. अगर हम चुप रहे मेरे प्रियो तो पत्थर बोल उठेंगे। We are supposed to teach all these things against this wrong doctrine, but we are preoccupied with other things and we are busy in so many things and we have never bothered about all these things. और मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम परमेश्वर के उस सत्य की बातों को, उस सही सिद्धांतों को लोगों को बताने के बजाय हम इतने सारे बातों में हम उलझ गए हैं कि हम उन बातों से दूर हो जा रहे हैं। So once church became a fundraising agency, but now organizations are also becoming fundraising agencies. और एक समय ऐसा था जब कलीसियाएं पैसे उजागर करने वाली संस्था बन गई थी, लेकिन आजकल संस्थाएं भी पैसे इकट्ठा करने वाली संस्थाएं बन जा रही हैं। Again, this is a devil's trap and we need to be very, very careful in this. और ये शैतान की एक चाल है, एक फंदा है जिससे हमको बचे रहना बहुत जरूरी है। Some folks may ask me, if we are not bothering about money, then how to run the mission or how to day to day run the mission? और कुछ लोग ऐसा भी मुझसे प्रश्न कर सकते हैं, अगर हम पैसे को नहीं इकट्ठा करेंगे तो हम मिशन की गतिविधियों को कैसा आगे बढ़ा पाएंगे? So I'm not saying that we don't want money. We too need money for running our hostels or providing allowances to our servants of God, etc. But where is our priority and what is our priority? और मैं ये बात नहीं बोल रहा हूं कि हमें पैसों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें हॉस्टल चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता है, परमेश्वर के दासों को उनकी तनख्वाह देने के लिए पैसों की आवश्यकता है और भी बहुत कार्यों के लिए है। लेकिन हमको हमारी जो प्राथमिकता है वो किस ओर है? क्या सिर्फ पैसे हैं या फिर परमेश्वर की उस सत्य बातों को लोगों तक पहुंचाने की है? It is not wrong for raising money for godly works and godly things, but if money collection tops the agenda, then we need to think about it. और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इन सारी बातों के लिए पैसों को इकट्ठा करना हमें आवश्यक है करके, लेकिन अगर हमारा पैसा इकट्ठा करना ही हमारा मुख्य काम बन जाए तो हमें इसके विषय में सोच विचार करने की आवश्यकता है। Later on, read 1 Samuel 15:22 and 1 Timothy 6:10. और बाद में आप जाकर के 1 शमूएल 1 शमूएल
1 Samuel 15:22 and 1 Timothy 6:10. और पहला शमूएल 15 का 22 और पहला तीमुथियुस 6 का 10 आप बाद में जाके पढ़ लें। Let us do what God has entrusted on us. और परमेश्वर ने जो बातें हमारे ऊपर दिया है उसको हम करने में आगे बढ़े। Before moving to the third lesson, just I want to remind one more thing in this context. इससे पहले कि मैं तीसरे पार्ट में जाऊं, मैं इस संदर्भ में एक और बात को बताना चाहता हूं। Turn back to the 2 Chronicles 34th chapter. और दूसरा इतिहास उसका 34वें अध्याय में आप आ जाएं। 2 Chronicles 34th chapter. और दूसरा इतिहास 34वां अध्याय। We all knew this again. This is another important chapter from where we have heard so many messages. और ये भी एक बहुत मुख्य एक अध्याय है जहां से हम बहुत सारे संदेशों को हमने सुना होगा। Joshua was 8 years old when he became a king. और योशिया 8 वर्ष का था जब वो राजा बना। God used this King Joshua to bring revival in the nation. और परमेश्वर ने इस योशिया राजा को इजराइल में एक जागृति लाने के लिए वो कारण बना। If you read the verses, he had started cleansing the city and he had started cleansing all the other places, and now he was sending the people to clean the temple of God. और इससे पहले कि वो मंदिर को साफ कर रहा था, उसके पहले उसने नगरों को साफ कराया और बहुत सारे सुधार के उसने कार्य किए। You can read it in 8 words. और 34 के 8 में आप उसे पढ़ सकते हैं। Now in the 18th year of his reign, when he had purged the land and the temple, he sent Shaphan son of Azaliah, Manasseh the governor of the city, and Joah the son of Joahaz the recorder to repair the house of Lord God. और हम 8वें पद में देखते हैं, फिर अपने राज्य के 18वें वर्ष में जब वह देश और भवन दोनों को शुद्ध कर चुका, तब उसने असलिया के पुत्र शापान और नगर के हाकिम मसेया और योहाज के पुत्र इतिहास के लेखक योहा को अपने परमेश्वर यहोवा के भवन की मरम्मत कराने के लिए भेज दिया। Again, 9th verse, if you read, when they came to Hilkiah the high priest, they delivered the money that was brought into the house of the God, which was Levites who kept the doors and had gathered from the hands of Manasseh and Ephraim, from all the remnant of Israel, from all the Judah and Benjamin, and which they had brought back to Jerusalem. और 9वें पद में इस प्रकार से लिखा है, अतः उन्होंने हिलकिया महायाजक के पास जाकर जो रुपया परमेश्वर के भवन में लाया गया था, अर्थात जो लेवीय दरबानों ने मनश्शियों, एप्रेमियों और सब बचे हुए इजराइलियों से और सब यहूदियों और बिन्यामीनियों से और यरूशलेम के निवासियों के हाथ से लेकर इकट्ठा किया था, उसको सौंप दिया। Let me summarize this and tell. मैं इसको संक्षिप्त में बताता हूं। King Joshua wants the temple to be cleansed, and they need money for cleaning the temple. So if money have been collected from the people and it was handed over to the in charge or the supervisor who has been given this work. और हम देखते हैं कि जो योशिया राजा है वो मंदिर की वो सुधार के कार्यों को करना चाह रहा है, वो उसको साफ सफाई करवाना चाह रहा है और इस कार्य के लिए पैसों की आवश्यकता है और लोगों से पैसा इकट्ठा किया गया और उन पैसों को ला करके जो उस भवन के कार्य का मुखिया था उसके हाथों में उसे सौंप दिया गया। So if you read the 14th words, you can see a wonderful thing was happened there. और अगर आप 14वें उसी अध्याय के 14वें पद को पढ़ेंगे तो वहां एक बहुत अद्भुत बात हो रही है। Now when they brought out the money that was brought into the house of the Lord. Let me read it once again. When they brought out the money that was brought into the house of the Lord, Hilkiah the priest found the book of the law of Lord given by Moses. और वहां पे हम देखते हैं जब वे उस रुपये को जो यहोवा के भवन में पहुंचाया गया था
निकाल रहे थे, तब हिल्किय्याह याजक को मूसा के द्वारा दी हुई यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक मिली। The book of the Lord was lost inside the temple. और परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक भवन के अंदर खो गई थी। They have never worried about the book of the law. और उन्होंने कभी भी परमेश्वर के व्यवस्था की पुस्तक के बारे में चिंता नहीं की। But when Joshua wants to cleanse the temple, and the money which was brought inside the temple, which was brought out, the book of the Lord was found. और जब योशिया उस मंदिर को वो साफ सफाई करवाना चाह रहा, मरम्मत करवाना चाह रहा है, और जो पैसे लोगों के पास से ला करके मंदिर में रखा गया, और जब वो मंदिर से उसको बाहर वो खर्च करने के लिए निकाला जा रहा है, तब हम देखते हैं कि वहां पे परमेश्वर के व्यवस्था की पुस्तक मिलती है। Money blocked the message. और हम देखते हैं जो पैसा था उसने परमेश्वर के वचन को रोक दिया था। When the money was thrown out, they found the message in this temple. और जब उन्होंने उस पैसे को वहां से निकाल करके बाहर किया, तो हम देखते हैं व्यवस्था की पुस्तक उनको मिल गई। Truth is more important than tithe. और सत्य दसवां से ज्यादा महत्वपूर्ण है। Message is more important than money. और जो संदेश है वो पैसों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। Scripture is more important than silver. और जो परमेश्वर का वचन है वो चांदी से भी महत्वपूर्ण है। Lesson number 3. और पाठ 3, Acts of Apostles, 3rd chapter, 6th verse. और प्रेरितों के काम 3रा अध्याय 6वां पद। In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। 3rd chapter, 16th verse. और उसी 3रा अध्याय का 16 पद। And his name, through the faith in his name, has made this man strong. Yes, the faith which comes through him has given him this perfect soundness. और हम देखते हैं उसी समय उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते हो सामर्थ्य दी है। हाँ मेरे प्रियो, ये सामर्थ्य परमेश्वर के वचन से मिलती है। Lesson number 3. और जो 3रा पाठ जो हमें मिलता है, Faith is more important than fact. और विश्वास तथ्य से अधिक महत्वपूर्ण है। Faith is more important than fact. विश्वास तथ्य से अधिक महत्वपूर्ण है। The just shall live by faith. This is the verse which was inspired, and Father Martin Luther paved way for Protestant Reformation or Protestant Church. और the just shall live by faith. Romans 1:16 and 17. और रोमियो 1 का 16 और 17, विश्वास ही से धर्मी जन जीवित रहेगा। और इसी कथन के द्वारा, इसी वचन के द्वारा जो मार्टिन लूथर थे, उन्होंने ये जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन है उसको वो उन्होंने लेकर के आया। Once again, I want to remind you the condition of our founding leaders when this mission was started. और फिर से मैं उन संस्थापक अगुओं के उस परिस्थिति को मैं समझाना चाहता हूं जिन्होंने इस संस्था की स्थापना की। They had no other resources except Bible. और उनके पास दूसरा कोई भी संसाधन नहीं था, केवल बाइबल उनके पास थी। They totally believed on the scripture and started functioning, and God has blessed us with nearly 400 missionaries and native workers and other assets, apart from thousands and thousands of volunteering partners. और मैं आपको बताना चाहता हूं, उनके इस विश्वास के कारण हम देखते हैं कि आज 400 से भी अधिक मिशनरी और बहुत सारे नेटिव वर्कर्स और उसके अलावा बहुत सारे हजारों की संख्या में हमें सहायता करने वाले हमारे सहयोगी पाए जाते हैं। Faith is more important than fact. और जो विश्वास है वो तथ्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है। A handful of young people now become thousands and thousands of workers. और जो थोड़े से जवान लोग थे वो आज सैकड़ों की संख्या में मिशनरी के रूप में पाए जाते हैं। According to Paul to Ephesians 2nd chapter 8th verse, if you read, by his grace we have been saved through faith
and not of ourselves. और अगर पौलुस के बातों को अगर हम देखें तो इफिसियों 2 अध्याय उसका 18वें पद में हम देखते हैं, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक ना सेकंड चैप्टर 8th verse, 2:8. 8वां पद इस प्रकार से बोलता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। Facts may be against of us, but faith in Lord will do wonders. और जो तथ्य है वो हमारे विरुद्ध हो सकता है, लेकिन जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं उसके द्वारा बहुत सारे चमत्कार को हम देख सकते हैं। Like Galatians, we had started our journey based on faith, but later on landing up in facts. और गलातियों की कलीसिया के समान हम जरूर विश्वास के साथ हमारी दौड़ को हमने शुरू किया, लेकिन आकर के हम तथ्य में अटक गए हैं। Again, Paul says we walk by faith and not by sight. According to the author of Hebrews, it is impossible to please God without faith. और इब्रानियों की पत्री में हम देखते हैं कि बिना विश्वास के प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना बात है करके बोलता है। पौलुस बोलता है हम विश्वास से हम आगे बढ़ते हैं, As he is the author and finisher of our faith. Amen. आमीन, क्योंकि वो हमारा विश्वास का कर्ता है। So you can read this in Hebrews 11th chapter 6th verse and Hebrews 12th chapter 1st and 2nd verse. और इन बातों को आप इब्रानियों 11 के 6 और इब्रानियों 12 के 1 और 2 में आप इन बातों को पढ़ सकते हैं। Let us keep aside all our human strategies, our knowledge, our strength, our experience, etc. and just believe on the word of God and we will be saved. और हम अपने मानव रणनीतियों से, अपने ज्ञान से, शक्ति से, अनुभव इत्यादि सारी बातों से अपने आप को दूर रखें और परमेश्वर के ऊपर अपने विश्वास को रखें, तो परमेश्वर हमें इन सारी बातों से बचा करके रखेगा। Faith is more important than fact. और विश्वास तथ्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है। That is the reason why in the last days it was written that Son of Man may find faith among the righteous. और इसीलिए बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, यीशु मसीह बोलते हैं, क्या अंत के दिन में जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या वो धरती पर विश्वास पाएगा? My dear beloved, we need to build this habit of depending on Lord. और मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने की आदत को हमको डाल लेना है। Lesson number 4. और चौथा पाठ, Acts of Apostles 3rd chapter, और प्रेरितों के काम 3रा अध्याय 12th verse. और उसका 12वां पद। Why so intently look us, not by our own power and not because of our godliness. This is what Apostle Peter said. और यहाँ प्रेरित पतरस इस प्रकार बोल रहा है कि इस प्रकार तुम क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। 13th verse, the God of Abraham, Isaac and Jacob, the God of our fathers, glorified his servant Jesus. और 13वें पद में बोलता है, अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की। Lesson number 4. और चौथा जो पाठ है, Proclamation is more important than promotion. उद्घोषणा प्रचार से ज्यादा महत्वपूर्ण है। Proclamation is more important than promotion. और उद्घोषणा जो है वो प्रचार से ज्यादा महत्वपूर्ण है। We need to proclaim Jesus by all means. और हमें प्रभु यीशु मसीह की घोषणा हर कीमत में करनी है। Apostles got very good opportunity to advertise themselves or to project themselves, but they proclaimed Christ. और जो प्रेरितों को अपने आप को आगे दिखाना, बड़ा करके दिखाने के लिए उनको बहुत ज्यादा मौके थे, लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की घोषणा करने में ही अपने समय को बिताया। We live in the period that people create opportunity to promote and project themselves. और हम देखते हैं ये ऐसा एक समय है जहां पे लोग अपने आप को बड़ा दिखाने में और अपने आप को आगे दिखाने में वो ज्यादा महत्व देते हैं। Apostles never promoted themselves, but they projected Christ always.
और हम देखते हैं प्रेरितों ने कभी भी अपने आप को सामने नहीं रखा, लेकिन हर समय में प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने सामने रखा और उसी की घोषणा उन्होंने की। Even in this context, you see how many times they are projecting Christ. और इस संदर्भ में भी आप देखिए कितनी बार उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को आगे रखा। Acts 3:6 says, Jesus Christ of Nazareth. और प्रेरितों के काम 3:6 में यीशु मसीह नासरी करके हम देखते हैं। 3:13 says, his servant Jesus. और 3:13 में हम देखते हैं उसके सेवक यीशु। 3:14 says, he is holy one and just. और 3:14 में हम देखते हैं वो बोलते हैं कि वो पवित्र और धर्मी है। And 3:15 says, he is a prince of life. और 3:15 में हम देखते हैं वो जीवन का कर्ता है। At every utterances they projected and they proclaimed Christ. और जब कभी भी उन्होंने अपने मुंह को खोला तो उन्होंने यीशु मसीह को ही उन्होंने आगे रखा। So we need to understand this proclamation is more important than promotion. और हमको इस बात को बहुत अच्छे से समझना है कि उद्घोषणा प्रचार, अपना प्रचार करने से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। My dear beloved, BYM doesn't need any promotion at all. और मेरे प्रिय भाई और बहनों, आशीष युवा मिशन को किसी भी प्रचार की आवश्यकता नहीं है। That is the reason why we don't use any full timer for promotional work. और इसीलिए हम किसी भी फुल टाइम वर्कर को प्रमोशनल कार्य के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते। It may be okay for other missions and other organizations, but BYM, we always depend on the word of God and we will not use full timers for promotional work. और ये बात दूसरे संस्थाओं के लिए वो उपयुक्त हो सकती है, लेकिन हम जो आशीष युवा मिशन में हैं, हम परमेश्वर के वचन को अधिक महत्व देते हैं और हम अपने फुल टाइम वर्कर को कभी भी प्रमोशनल कार्य के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते। That is the trademark what God has given and that is the vision of our founding leaders and they paved way for us like this. और ये हमारे संस्थापक अगुओं की एक दर्शन थी और इसको उन्होंने हमारे लिए मार्ग के रूप में तैयार करके दिया है। So by saying this, I am not saying that we don't want any flyers to promote or to tell about us. It is not like that. और मैं ये बोलने के द्वारा ये नहीं बताना चाह रहा हूं कि हमें आशीष युवा मिशन को बताने वाली चीजें नहीं चाहिए। If we go according to the vision and mission what God has given to us, then God will promote our mission. और अगर हम परमेश्वर के द्वारा दिए गए उस दर्शन और उस कार्य के दर्शन को अगर हम आगे लेकर के चलेंगे तो परमेश्वर हमारे मिशन को आगे बढ़ाएगा। Again, it is not wrong in sharing about our mission to others. Let others also should know about our vision and mission, but it should be within the boundary or within the limit. और मैं ये बताना चाहता हूं कि आशीष युवा मिशन के विषय में आप दूसरे लोगों को ना बताएं, ऐसा नहीं है, आपको बताना जरूरी है, लेकिन एक सीमा के तहत आप रहें। Recently, as I told, I was returning from Sunabeda. I had spent a few hours with our young missionary couple Johnson and Hema at Vijayanagaram. और जब मैं सुनाबेड़ा से ओडिशा से मैं वापस आने के लिए जब कुछ घंटे में विजयनगरम में जवान दंपति जॉनसन और हेमा के साथ समय बिता रहा था। He told that partners are expecting missionaries to do promotional work like other organizations or other missions. और वो बताने लगे कि जिस तरह से दूसरे मिशन के मिशनरी संस्थाएं कर रही हैं, वैसे ही हमारे मिशन के मिशनरी भी पूर्णकालिक रूप से उस धन को इकट्ठा करने में लग जाएं। That is not our calling and that is not our vision. We are entirely different from other missions. और ये हमारी बुलाहट नहीं है, ये हमारा कार्य नहीं है, हम दूसरे मिशन से बिल्कुल अलग हैं। Our calling or our mission is teaching the word of God, revival and evangelism. Other things are afterwards. और हमारा जो मुख्य भाग है वो है जागृति और सुसमाचार प्रचार। इसके अलावा जो दूसरे कार्य हैं वो बाद में माध्यमिक रूप से वो आते हैं। Sometimes when we try to promote ourselves,
और कई बार जब हम अपने आप को दूसरों के सामने रखने की कोशिश करते हैं, we lose our vision and we may be going down from the sight of God. और ऐसा करने से हम परमेश्वर की दृष्टि से हम अलग हो जाते हैं या हम दूर हो जाते हैं। It is God who called us and it is God who knew when to promote us to what level. और परमेश्वर ने हमें बुलाया है और वो जानता है किस समय हमें वो उठाना है। We need to be there in his hand and in a day he will take us to the place where he wants us to be. और हमें उसके हाथों में रहना है और एक दिन उचित समय में वो हमें ऊपर उठाएगा। Proclamation is more important than promotion. और उद्घोषणा प्रचार से, स्वयं के प्रचार से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। By all means, और सारे चीजों से, by any means, और किसी भी तरह से, in whatever way God has provided us, we need to proclaim him. और जो कुछ भी उसने हमें दिया है उन सब के द्वारा हमें सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का ही प्रचार करना है। Lesson number 5. और पांचवा जो पाठ है, Acts of Apostles 3rd chapter 7th verse. और प्रेरितों के काम 3रा अध्याय 7वां पद। And he took him by the right hand and lifted him up. Immediately his feet and ankle bones received strength. और 7वें पद में लिखा है, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। Lesson number 5. और पांचवी जो बात है, Action is more important than admission. और कार्रवाई स्वीकृति से अधिक महत्वपूर्ण है। In other words, accomplishment is more important than assurance. दूसरे शब्दों में उपलब्धि आश्वासन से अधिक महत्वपूर्ण है। Faith put in action. और जो विश्वास है वो कार्य में प्रकट होना। Apostle Peter took him by his right hand and lifted him up. और प्रेरित पतरस ने उसके दाहिने हाथ को पकड़ा और उसे उठ खड़ा किया। Acts 3rd chapter 8th verse says, the lame man became active man and he leaped up, stood, walked, entered the temple and praised the Lord. और 8वें पद में हम देखते हैं वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। Helping hands are better than playing rip, said Mother Teresa. और मदर तेरेसा ने इस प्रकार से कहा, प्रार्थना करने वाले होठों की तुलना में मदद करने वाली हाथ बेहतर हैं। Sometimes knowingly or unknowingly we are talking more and working less. और जाने अनजाने में हम बहुत बार बहुत ज्यादा बोलते हैं और काम बहुत कम करते हैं। But we should talk less and work more. लेकिन हमें काम ज्यादा करना है और बोलना बहुत कम है। Many of our fellow brothers are spiritually lame in our fellowships who were waiting for someone like Peter to lift him up. और हमारे जो फेलोशिप्स हैं, जो उसमें बहुत सारे हमारे भाई जो हैं बहुत पंगु के रूप में पाए जाते हैं, वो सही रीति से आत्मिक रीति से चल नहीं पा रहे हैं, तो वो रुके रहते हैं कि कौन पतरस आएगा और हमें आत्मिक जीवन में वो हमें सुदृढ़ करेंगे। But instead of lifting them up, most of the times maybe or may not be, we are dumping them. और उनको उठाने के बदले हम बहुत बार उन्हें हम छोड़ देते हैं या उन्हें हम तिरस्कार कर देते हैं। Many of us would have come across the situations like this. और हम में से बहुत लोगों ने इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना किया होगा। Several of our fellow brothers and sisters need helping hand. और हम में से हमारे बीच में पाए जाने वाले बहुत सारे भाई और बहन ऐसे हैं जिनको एक सहायता का हाथ उनको चाहिए। If we lift them up and they will shine for God. अगर हम उन्हें खड़ा कर दें, वो परमेश्वर के लिए प्रज्वलित हो जाएंगे। If we give right hand, they will praise God and they will do wonders for God. अगर हम अपना दाहिना हाथ उनको दे दें, वो खड़े होंगे और वो परमेश्वर की स्तुति और महिमा करने पाएंगे। Many of our fellow brothers and sisters may have talents and skills, but spiritually they may be lame.
और बहुत सारे हमारे भाई और बहनों के पास बहुत सारी प्रतिभाएं और कौशल होंगे, लेकिन वो आत्मिक रीति से पंगु होंगे। God wants you and me to act as Apostle Peter to lift up the lame man. और हमें परमेश्वर चाहता है कि हम भी प्रेरित पतरस के समान हो जाएं, कि हम उस लंगड़े व्यक्ति को हम दाहिने हाथ से पकड़ के उठा करके उनको खड़ा करें। If you read Acts of Apostles 4th chapter 13th verse, Peter and John were boldly witnessing the Lord. और अगर आप प्रेरितों के काम 4:13 में अगर आप देखेंगे तो वहां पे हम देखते हैं पतरस और यूहन्ना बहुत साहस के साथ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे। And the 14th verse says, this lame man who was healed with the help of Apostle Peter, he was standing along with them and testifying Lord. और 4:14 में हम देखते हैं उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़े देखकर, और क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के उन महान कार्यों को वो प्रकट कर रहा था। Action is more important than admission. और हम देखते हैं कि जो क्रिया है वो हमारे द्वारा किए जाने वाले वो जो स्वीकृति है उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। Sometimes we may say we will do this, we will do that, I want to do that, I want to do that. Okay, all those talkings should be converted into action. और बहुत बार हम ये बोल सकते हैं कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये, लेकिन उन सारे बातों को छोड़ करके उन सारे बातों को कार्य में परिवर्तित करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। So these are the 5 areas or 5 lessons we need to come back to basics. और ये 5 पार्ट ऐसे हैं जिनमें हमने देखा कि हमें बुनियादी बातों में वापस आने की आवश्यकता है। Souls are more important than stones. और जो आत्माएं हैं वो पत्थरों से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। Souls are more important than stones. और जो आत्माएं हैं वो पत्थरों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। Truth is more important than tithe. और जो सत्य है वो दसवां से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। Message is more important than money. और हम देखते हैं जो संदेश है वो पैसों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। Faith is more important than fact. और जो विश्वास है वो तथ्य से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। Proclamation is more important than promotion. उद्घोषणा या घोषणा प्रचार से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। And action is more important than admission. और जो कार्य है या कार्रवाई है वो स्वीकृति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। I may be somewhat emphasized at certain places, but this is what God has dealing with me for, and just what God has given me or what God has burdened me, just I have shared it to you. और आप ये सोच सकते हैं कि कुछ ही जगहों पर मैंने ज्यादा स्ट्रेस दिया हूं, ज्यादा भार दिया हूं, लेकिन यही बातें हैं जो परमेश्वर ने मुझसे बर्ताव किया और यही बातें हैं जो परमेश्वर ने मुझे दिया ताकि मैं इसे आपके साथ बांट सकूं। The founding leaders are already, they have laid road for us. और हमारे जो संस्थापक अगुवे हैं वो उन्होंने पहले ही हमारे लिए मार्ग तैयार कर दिया। But we need to go in that same direction. और हमें उसी दिशा में हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। We should not get deviated here and there. हमें यहाँ वहां भटक नहीं जाना है। May God help us to be clear in our vision and to be integrity in the mission. और परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह करें कि हम हमारे दर्शन में स्पष्टता हो और हमारे कार्य में सत्य निष्ठा पाई जाए। May God bless you. Thank you. Let us pray. परमेश्वर आप सबों को आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। So I'll just leave this session to Anand Raj. So now for some time we can pray based on this. और अभी मैं आगे का सेशन आनंद राज अन्ना को देना चाहता हूं, वो आगे के समय को प्रार्थना में अगुवाई करें। Praise God. Thank God, Anand, and thank you so much, George भैया। परमेश्वर के जीवित वचन को हमने सुना है और एक बार प्रभु के चरणों में आने के लिए परमेश्वर ने
अपने बहुमूल्य